Hello, my dear student. Good morning to all of you. Today I will discuss the types of organic reaction. The chapter is lengthy, but you have to keep the patience. प्रिय छात्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। विषय वस्तु थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इस पूरे वार्ता को सुनना पड़ेगा। कार्बनिक रिएक्शंस या कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नंबर 1 इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 is the addition reaction, number 3 is the elimination reaction, and number 4th is the rearrangement. Let us explain what is the meaning of these terms. For example, here CH4 has been taken. Kindly CH4, CH, there are 4 atoms around hydrogen atom, around carbon atom. If any one of these hydrogen atom out of these 4 hydrogen atom is replaced by some other atom or groups of atom, then this is known as substitution reactions. Suppose there is a table, 3 students are sitting there, number A, B and C. If anyone D or E comes and he sits, occupies the position of C and C leaves, then this is the substitution. Around carbon there are 4 hydrogen atom. Any one of these hydrogen atom is replaced by another incoming group or groups of atom. Suppose this is the A, may comes and sit here, then this will be substitution reaction. For example, CH4, around carbon there are 4 hydrogen atom and here is the chlorine. Out of 2 chlorine atoms, chlorine divides. There is a cleavage of bond. What is the meaning of cleavage of bond? As you are already aware that 2 atoms are bonded either by ionic bond or covalent bond or coordinate bond. If there is a equal sharing of the electron, then this is known as covalent bond. And if this bonds breaks and electrons are equally shared, then there is a formation of free radicals. Each chlorine will have 1 electron. Or if there is an unequal distribution of electron after cleavage, then 1 chlorine atom will have positive charge and other chlorine will have the negative charge. The species having the negative charge is known as chloride ion, and the species having the positive charge is known as chloronium ion. So here there is a replacement, substitution of 1 hydrogen atom by any other atom or group of atom. This is the substitution reaction and very well illustrated by this example. CH4 plus chlorine, there is a formation of methyl chloride plus hydrogen chloride in sunlight. This reaction takes place in the sunlight. Sunlight is represented by H nu. Sunlight is represented by H nu. If you want to accurately mention this reaction, above the arrow you or below you must write down H nu. This H nu symbol itself illustrates that this reaction takes place under the sunlight. In dark this reaction cannot take place. So this is the example of substitution reaction. The second one is the addition reaction. When 1 atom or group of atoms are added
across the double or triple bond. This is the characteristics feature of unsaturated carbonic compound. For example, here is the ethylene, CH2 double bond CH2, and here is the hydrogen. Hydrogen has two atoms. One atom has been added to this carbon and other atom of hydrogen is added to this carbon, and there is a formation of methane. This is the unsaturated. Now after addition of hydrogen, this has become saturated. So whenever there is a addition of atoms or groups of atom across the unsaturated bond, that is across the double or triple bond, then this reaction is known as the addition reaction. This reaction is not limited to the alkene, but in alcohols and ketones a lot of reactions are there which are the example of addition reaction. Addition means atoms or group of atoms added across the unsaturated or double bond or triple bond. This is the addition reaction. And third is the elimination reaction. Group of atoms are removed or eliminated. For example, CH3, CH2, OH. What is the name of this compound? Ethyl alcohol or ethanol. When this is treated with concentrate H2SO4 at 170 degrees centigrade, there is a formation of ethylene plus water. This is the elimination reaction. Here hydrogen and OH is eliminated to form the water. So when atoms or groups of atom are eliminated or expelled or removed from the substrate, then this is the elimination reaction. Removal of H and OH leads to the formation of double bond in this case. The key words here is the removal from multiple bond, removal of atom across the multiple bond, and fourth is the rearrangement. Atom shifts within the same molecule. Here is the isobutyl alcohol. This is the secondary. What is the meaning of primary, secondary and tertiary? Here is the carbon atom and there are 4 hydrogen. If only one group is replaced by alkyl group, then this is known as primary. When 2 carbons are replaced, when 2 hydrogen are replaced by substitute, then this is known as secondary. And when 3 hydrogens of carbon are replaced by alkyl group, then this is known as tertiary. Primary, secondary and tertiary. Do not try to confuse. Here is the methane simple structure. Carbon is bonded by 4 hydrogen atom all around. This is the single bond. And if only one hydrogen is removed by alkyl group, then this is primary or primary substituted. And if 2 hydrogen are substituted by alkyl group, then this is the secondary. And 3 tertiary. If all the hydrogens across the carbon are substituted, then there is a formation of quaternary salts. So here is the isobutyl carbonium ion. Why butyl? There are 4 carbon, 1, 2 and 2 here, 4. Isobutyl are secondary because 3 hydrogen, 2 hydrogen here,
or one hydrogen is here is replaced. This is the isobutyl. This is the secondary. Only two, one hydrogen and second hydrogen replaced by double methyl group, and this is the tertiary, because three hydrogen atoms are substituted. So this is the tertiary, this is the secondary. As you are already aware of the fact, आपको ये ज्ञात है कि tertiary is more stable as compared to the secondary. That's why this secondary carbonium ion, there is a shifting of an atom to form the tertiary, the most stable species. Carbon skeleton rearranges to form a more stable ion. This is the less stable secondary, and this is the more stable because this is the tertiary. So this is the easy transformation. This is known as rearrangement, shifting of atom within the carbon skeleton, called internal shifting. What is the internal shifting? So let us summarize these things. Keywords here: the replacement. One or more hydrogen is being replaced by another atom or group of atom. Not restricted to only hydrogen. One or more atoms are replaced by another one or more atoms. This is the replacement. And addition, atoms are added across the double or triple bond, that is unsaturated system. If you consider carbon double bond O, this is also unsaturated. Here also addition reaction can take place. This may be the aldehyde or may be the ketone, but there is unsaturation. Double bond is there. So wherever there is a double bond or triple bond, this is the unsaturated compound, and characteristic feature of this is the addition reaction. And in the addition reactions, atoms are added across the double or ट्रिपल बॉन्ड. एडिशन विदाउट रिमूवल, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा. और यहाँ पर क्या है? एलिमिनेशन. ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एलिमिनेटेड आर रिमूव्ड. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल आयन leads to the formation of double bond. This is the ethyl alcohol, and there is a formation of ethylene plus water, and here is the internal shifting of an atom or group of atom to attain the stability, to acquire more stability. This is known as the rearrangement. Let us move forward. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हो सकता है. अ फ्री रेडिकल, सपोज यू हैव द ब्रोमीन, हियर दिस इज द ब्रोमीन and two atom of bromine are bonded by covalent bond, and if there is a homolytic cleavage, then there is formation of free radical. Each of the bromine will acquire an electron. This is the free radical. This radical is called the free radical. This circle represent odd number of electron. तो substitution reaction may occur by free radical substitution reaction mechanism or electrophile. Electrophile means electron loving. It means they will be short of the electron. For example, carbonium ion. This is the short of electron. That's why this will prefer to attack having species having the rich electron. So electrophilic substitution by electrophile and substitution by nucleophile. And again nucleophilic reaction is of SN1
and SN2 type. तो we have to read free radical mechanism, substitution reaction क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है. अब एक के बाद एक हम इसको पढ़ेंगे. अब फ्री रेडिकल substitution reaction that occurs through free radical and is usually initiated by the heat or ultraviolet. पहला एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि मेथेन में क्लोरीन कैसे ऐड करती है, जहाँ पर हमने H न्यू बताया था और कहा था कि ये अंडर सनलाइट हैपन घटित होती है. तो कैसे होता है, अब ये देखिए आपका मेथेन है, ये क्लोरीन है. अब क्लोरीन अंडर सनलाइट विल डिसोसिएट टू फॉर्म 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल एज आई हैव डिस्कस्ड. ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे. एंड उसके बाद ये जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा. अब कैसे होगा, इसका डिटेल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है. इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन वी विल डिस्कस लेटर ऑन ए लिटिल आफ्टरवर्ड. अब फ्री रेडिकल में क्या कर रहा है, रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल, अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट इज नीडेड एंड ऑकर्स इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड. इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन स्टार्ट होता है, प्रोपेगेशन चेंज बढ़ती है, और टर्मिनेशन चेन कहीं ना कहीं हैव टू बी टर्मिनेटेड, फिनिश. नो आंसर विल व्हाट, रिएक्शन इज चेन रिएक्शन. आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं. अब इसी जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा बाय फ्री रेडिकल होगा. तो अब जैसे मेथेन में क्लोरीन, तो क्लोरीन विल डिसोसिएट, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है. होमोलिटिक मतलब 2 क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल bond means 2 electron, and after cleavage 1 electron will move to this chlorine and other electron will move to this chlorine. तो अब इससे क्या होगा कि क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज. इसे कहते हैं हम इनिशिएशन. तो पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, आपका फ्री रेडिकल बन गया. अब उसके बाद दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद द मीथेन एंड नेक्स्ट फ्री रेडिकल, methyl free radical will be generated, and this free methyl radical, as you know, methyl radicals, free radicals are very very active. They have the higher energy, they have tendency to react with the other. So this methyl free radical will react with second molecule of chlorine and formation of methyl chloride and again chlorine free radical. This reaction may take place 100 times, 1000 times, and in each case there will be increase in the change length. Free radical continuously regenerated and get attached. तो इस तरह से प्रोपेगेशन होता है. अब जब इसको ख़त्म करना होगा तो 2 free radical will combine. Either free radical chlorine free radical will combine to for chlorine or methyl free radical and chlorine free radical. There is a formation of methyl chloride. तो सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. दूसरा, अटैक ऑफ द फ्री रेडिकल ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल that leads to the formation of next free radical, and reaction continues and chain propagates, बढ़ती चली जाती है. अब जब टर्मिनेट करना होगा तो फ्री रेडिकल विल कंबाइन. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स एंड मेथिल फ्री रेडिकल्स. यही तो 2 आपके फ्री रेडिकल है, ये मेथिल है और वही चीज़ यहाँ है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है. यानी देयर आर only 2 free radicals. तो these 2 free radicals will combine with each other. या इसको इससे हो जाएगा तो भी ये आपको कंबाइन करेगा तो भी न्यूट्रल हो जाएगा और चेन रुक जाएगी. तो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. आइए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरीके से. नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक,
नंबर एक फ्री रेडिकल और सेकंड इज द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in which an electrophile attacks the substrate. अब electrophile means electron loving. It means this will be short of electron itself and replaces an atom, usually hydrogen. Where it occurs, aromatic compound, especially benzene, because benzene is has 3 double bond. It means there are 6 pi electrons. Benzene is the electron rich. There is a 3, यहाँ ये नहीं, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ये गलत है बेटा. तो ये जो है 3 pi electrons are there. It means this is the electron rich system and this system will be easily attacked which are electron deficient, means electrophiles. तो अब इससे होगा क्या, to preserve the aromaticity, इसकी aromaticity बनी रहेगी और अगर एडिशन हो जाएगा तो इसकी aromaticity डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अब ये सारे चाहे आपका हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है. ऑल दीज रिएक्शंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. electrophile easily attacks. Electrophilic substitution means substitutions that occurs with the help of electrophile, and there is a substitution that the name substitution electrophilic substitution. अब देखिए यहाँ पर आपका ब्रोमीन है C6H6. इफ एनी वन, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन, तो देर आर 6 हाइड्रोजन एटम. इफ एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज substituted by bromine, there is a formation of ethyl bromide plus HBr, and this reaction takes place in the presence of iron bromide. This is the catalyst. This is the catalyst. One hydrogen atom of benzene is replaced by bromine in this case. यहाँ पर आपको ब्रोमीन आ जाएगी. तो ये ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल, एक बहुत बढ़िया उत्कृष्ट उदाहरण है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. वैसे हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है लाइक बेंजीन, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. उसके उदाहरण है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्री क्राफ्ट एसाइलेशन. In all these reaction, iron bromide act as a catalyst. Iron bromide act as a catalyst. अब ये कैसे होगा, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, इसको आगे हम डील करेंगे. तो पहले क्या है मैकेनिज्म में कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले चरण में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लविंग. तो अब यहाँ पर आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल होगा या ये आयरन टेट्राब्रोमाइड जो आपको लिखा हुआ है ये होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा. क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल. ये Br+ बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, दिस विल लव द इलेक्ट्रॉन लीच सिस्टम, इलेक्ट्रोफाइल. तो ब्रोमोनियम, ये जो है इसको आप ब्रोमाइड आयन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोनियम आयन. Br+ is called bromonium ion, not the bromide ion, and this is an excellent example of electrophile. So first step in all these reactions where halogenation, nitration, sulfonation, Friedel Crafts alkylation, Friedel Crafts acylation, this will act as a इलेक्ट्रोफाइल. तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अगर एक की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी का भी मैकेनिज्म आए तो आप लिख सकते हैं. दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये ब्रोमाइड जो ब्रोमोनियम आयन है अटैक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन
पहले ही हमने बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड देयर विल बी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर आपको आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसको रिप्लेस करेगा और फिर उसके बाद रिमूवल, वहाँ ये बैठ जाएगा और कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि जो एक ट्रांजिस्टर स्टेज आएगा, इसको हम आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। देयर आर 3 double bond, 6 pi electrons, and bromine in the presence of halogen carrier. Iron bromide is known as halogen carrier and bromobenzene is formed. अब इसमें स्टेप क्या है? अब पहला स्टेप क्या कहा गया था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. दिस Br इज अंडरगोज क्लीवेज. बांध यहाँ से टूटता है और वो होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज. तो यहाँ पर Br माइनस आके अटैच होगा तो FeBr4 माइनस आयरन टेट्रा ब्रोमाइड ये माइनस होगा और ये ब्रोमोनियम आयन, ये आपका ब्रोमोनियम आयन ही क्या होगा, सॉरी ये लंबा खिंच गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमोनियम आयन. अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में अब ये SN1 SN2, अब यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं. यहाँ पर आप देखिए ये पहला स्टेप है, फिर उसके बाद ये अब यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप आपका, ये आपका बेंजीन है, ये आपका ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमाइड आयन जो आपको बना था. अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर ये आपको अटैच्ड हो रहा है. ये ब्रोमोनियम आयन है, यही इलेक्ट्रोफाइल है. Br पर पॉजिटिव साइन है, ये क्या है, पॉजिटिव साइन है ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन है. अब इसके बाद बेंजीन पर ये अटैक कर गया. अब उसके बाद क्या होगा, ये जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा. अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको गया है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. ये आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, इसको नेगेटिव मत समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है. और इसका अब रिजोनेंस होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. इसको पूरे को इस तरीके से, ये है रिजोनेंस स्ट्रक्चर. अगर इसका आप ग्राफ खींचिए तो इस तरीके से यहाँ से पहले ये यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा और फिर उसके बाद ये ऐसे आता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन, ये दिस मच एनर्जी आपको एक्टिवेशन एनर्जी है. ये क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है और ये आपको यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. अब उसके बाद यहाँ जो है, ये जो हैलोजन कैरियर ब्रोमाइड ले लिया था, दिस विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन. तो दीज आर द 3 स्टेप. पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल. पहला रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और नेक्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, formation of resonance hybrid product, and this is most stabilized because this has got the resonance. इसको प्रैक्टिस आप जितना करोगे बेटे उतना ही आपको आसानी हो जाएगी. फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, हैलोजन कैरियर इसको ले लेगा और जो है ब्रोमाइड. तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो आपने 2 पढ़ा, नंबर 1 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आइए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अब उसी तरीके से हमने कहा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये नाइट्रेशन का आपको एग्जाम्पल दिया है. नाइट्रेशन जो है आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड
दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में काम करती है, सिर्फ नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। तो अब यहाँ पर सल्फोनिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड है। अब ये आपको पहले ये बनेगा, बाइसल्फेट आयन बनेगा और ये बनेगा, फिर उसके बाद ये टूट करके ये नाइट्रोनियम आयन, यही आपके काम का है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब वही फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। अब यहाँ पर देखो अटैक कर दिया, ये हो गया, फिर रेजोनेंस हो गया और फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑल द स्टेप ऑफ सिम, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ electrophile, second is the attack of the electrophile on the benzene ring, and third is the elimination of proton। ये आपका ही है। अब फिर उसके बाद उसी तरह सल्फोनेशन, अब यहाँ पर सल्फोनेशन है तो फिर इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप एडिशनल होता है, एक स्टेप एडिशनल होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको क्या बन रहा था, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब यहाँ पर क्या है, दिस प्रोड्यूसेस द SO3 इन कंसनट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले आपको ये स्लो स्टेप है, फिर उसके बाद SO3 अटैक करेगा, इससे जो है आपको सल्फोनिक एसिड बनेगा और सल्फोनिक एसिड ये बाइसल्फोनेट आयन बनेगा, ये अटैक करेगा और फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप की रिएक्शन है, इसको आपको लिख करके करना पड़ेगा। ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड SO3 बनता है, बाइसल्फेट आयन बनता है। अब उसके बाद ये जैसे अटैक करता था, ये पर आपको अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद ये अटैक करेगा, ये स्लो होगा, ये आपको बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से बनेगा आपको। तो उसी तरीके से आप फ्रीडल क्राफ्ट में, इसमें भी आपको पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल R+, this is the electrophile, this is the electrophile, electron loving, having the positive charge, this is not, currently आप जरा भी कंफ्यूज नहीं हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये यहाँ पर ये अटैक करेगा जैसे पहले अटैक करता था, और थर्ड में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आपका निकल जाएगा। अब ये आपको मेथिल बेंजीन आपको बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन जा। अब उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में वही है, ये एसिटिल क्लोराइड और फॉर्मेशन होगा, ये तीनों आपको इस तरह। अब उसके बाद आते हैं हम, आपने 2 पढ़ा, नंबर 1 फ्री रेडिकल, नंबर 2 पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, और अब उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बनेगा। तो क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल, अभी तक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था जो पॉजिटिवली चार्ज था, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो कि निगेटिवली चार्ज होगा, ये अटैक करेगा एंड रिप्लेसेस द लिविंग ग्रुप। अब वहाँ पर बेंजीन में आपको एरोमेटिक सिस्टम में देखने को, यहाँ पर अल्किल हैलाइड पोलर कंपाउंड, ये में आपको दोनों में देखने को मिलेगी। ये SN1 है और SN2 है। 1 and 2 denotes the order of reaction. This is the first order reaction, this is the second order reaction. आप पहले ही जानते हैं कि आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन इज द मॉलिक्यूलरिटी, एंड व्हाट इज द ऑर्डर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो क्रिया के उन अणुओं की संख्या जो क्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, उसको हम उस अभिक्रिया की आणविकता या आपको प्रभावित करते हैं, उसको उसकी कोट कहते हैं। हिंदी में 2, मॉलिक्यूलरिटी एक वर्ड है और दूसरा आर्डर है। इसको जो है मॉलिक्यूलरिटी और आर्डर, आर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं, कोटि, कोटि।
ये जो है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, जितना आणविकता, जितने भी मालिक्यूल्स अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको हम उसकी आणविकता या मालिक्युलरिटी कहेंगे, और जितने अणु क्रिया की गति को प्रभावित करेंगे उनकी संख्या को हम ऑर्डर या कोट कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक अणु है, रिएक्शंस तो सबस्ट्रेट और दो में आणविकता दो है, लेकिन एक ही अणु है जिसकी सांद्रता क्रिया की गति को प्रभावित करती है, इसीलिए इसको SN1 कहते हैं। SN2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2, यानी दो अणु हैं जिनकी सांद्रता क्रिया की गति को प्रभावित करती है। अब आइए देखते हैं हम क्या है SN1 और SN2। ये SN2 में देखो, रिएक्शन आकर्स इन वन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में आपको करता है विद साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। एक तरफ बॉन्ड बनता है और दूसरी तरफ से बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने की समस्त अभिक्रिया एक ही चरण में संपादित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका है SN2। अब यहाँ पर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हमने दो ऑलरेडी बताया कि ये आपकी ऑर्डर है। देयर आर टू मॉलिक्यूल्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स आर अफेक्टिंग। तो व्हाट आर दे? सबस्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन क्रिया की गति को प्रभावित करेगा और न्यूक्लियोफाइल का सांद्रण भी क्रिया की गति को प्रभावित करेगा। यानी इस अभिक्रिया में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण परिवर्तन से क्रिया की गति परिवर्तित होती है। यानी दर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of alkyl halide multiplied by the concentration of nucleophile. Both affects the rate of reaction, that's why this is known as SN2 reaction. अब यहाँ पर देखो एथिल मेथिल ब्रोमाइड है और OH है, CH3OH बना, Br has been replaced by OH, तो सब्स्टिट्यूशन। और OH क्या है? ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग। तो ये हुआ तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और इन दोनों का, इस OH माइनस का सांद्रण और CH3Br का सांद्रण, दोनों का सांद्रण क्रिया की गति को प्रभावित करेगी, इसलिए SN2 है। अब ये वन स्टेप पहले ही बता गया कि एक तरफ जब नया बॉन्ड बनता है, दूसरी तरफ नया बॉन्ड टूटता है, दूसरी तरफ नया बॉन्ड बनता है। और नो कार्बोकेटायन इज फाउंड, बैक साइड अटैक होता है, पीछे से होता है। जैसे आपका छाता है, छाता आपने फ्रंट में पकड़ा है, बैक साइड से अटैक होगा। अभी इसको हम फिगर दिखाएंगे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। फेवर्ड बाय प्राइमरी हैलाइड, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर। ये इतना है कि गागर में सागर भर दिया गया है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया ध्यान दें। पहली चीज़ हमने बताया कि यहाँ दोनों का सांद्रण प्रभावित करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई कार्बन एटम, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन नहीं बनता है। एक ही चरण में क्रिया संपादित होती है, एक तरफ से बॉन्ड टूटता है, दूसरी तरफ से बॉन्ड बनता है। अब इसमें प्रेफर किससे होता है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड में प्रेफर किया जाता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और जो आपको सॉल्वेंट लगेगा पोलर एप्रोटिक, अभी आगे हम आपको बताएंगे पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है। तो ये तीन अगर आपका रहेगा, पूछ देता है, सबस्ट्रेट दे देता है और फिर एजेंट लिख देता है और कहता है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो अगर आप में प्राइमरी हैलाइड है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा कि विच वन इज द स्ट्रांग एंड विच वन आर द पुअर न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये आपको इतना आपकी चीज़ें हैं।
अब S1 में क्या है, ये वन स्टेप रिएक्शन है, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा था, दूसरे तरफ से बॉन्ड बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 2 स्टेप रिएक्शन है और रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। एक ही जो है सबस्ट्रेट के सांद्रण पर क्रिया की गति प्रभावित करता है, यानी जो क्रिया की प्रभावित करने वाला सांद्रण है वो सांद्रण सिर्फ अल्काइल हैलाइड का है, इसीलिए SN1 सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल एंड ऑर्डर इज 1। ये इस तरीके से है, सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ पर प्राइमरी था, अब यहाँ पर टर्शियरी हो गया। आपको परेशानी तब होती है जब सेकेंडरी होगा तो उसमें क्या होगा, तो इसमें तो क्लियर है कि ये SN2 होगा, टर्शियरी है तो SN1 होगा। अब जब सेकेंडरी आ जाता है तब ये डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है और पोलर जो है सॉल्वेंट कैसा है। इन्हीं दोनों के बेसिस पर सेकेंडरी का प्रोडक्ट निर्धारित किया जाता है। प्राइमरी में कन्फर्म है SN2, टर्शियरी में कन्फर्म है आपको SN1। अगर सेकेंडरी जो है आपको अल्किल हैलाइड होगा तो उसमें इस रिएक्शन से जाएगा कि इससे जाएगा। दिस विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब यहाँ 2 स्टेप, पहले आयनाइजेशन होगा, आपको यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर उसके बाद कार्बोकेटायन विल अटैक टू दिस सिस्टम ROH। अब करेक्टरिस्टिक क्या, प्रेवर्ड बाय टर्शियरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड रेसिमाइजेशन। यहाँ पर देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और यहाँ पोलर एप्रोटिक जो प्रोटॉन नहीं देते हैं, और यहाँ पर पोलर भी हो यानी ध्रुवता भी हो, और प्रोटिक जैसे वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं जो पोलर एप्रोटिक हो गए। तो पोलर प्रोटिक है तो आपको SN1 होगा, पोलर एप्रोटिक है तो आपको SN2 होगा। और रेसिमाइजेशन 50% D एंड 50% L फॉर्म इज फॉर्म्ड, रेसिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 50% ऑफ द कंपाउंड D होगा और दूसरे का L होगा, और दोनों का 50-50 बनेगा, इसलिए नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाएगी। इसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। आइए इसको हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए जो है SN2 में हमने कहा से क्या कहा था आपसे, बैक अटैक होगा। ये प्रिय छात्रों ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, यही इसका जान है पूरे लेक्चर का जो अब ऑनवर्ड आ रहा है। ये आपको मेथिल हमने कहा था SN2 में प्राइमरी एल्किल हाइलाइड होते हैं, SN1 में टर्शियरी होते हैं। सेकेंडरी में डिपेंड करता है कि आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है और नेचर ऑफ आपको न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो अब यहाँ पर जो है बैक अटैक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बैक अटैक, पीछे से, जैसे आप छाता लेके चल रहे हैं और जो है पीछे से अटैक कोई आपको आघात करे पीठ पर जो है। अब वहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियस क्लीवेज एंड साइमल्टेनियस फॉर्मेशन, बंध टूटने और बंध बनने की दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी। यहाँ देखिए बंध बन रहा है जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, और ये बंध टूट रहा है जो कि आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। अब उसके बाद ये जो है, अब देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से सिमेट्री थी, अब ये ट्रांजिशन स्टेज में इस तरीके से सिमेट्री हो गई। ये जो OH आके यहाँ से अटैक हो जाएगा पीछे से, और दिस विल लीव, और लीव करने के बाद ये हो गया। इसको कहते हैं इनवर्जन कंप्लीट, छाता उलट जाए। आप जो है रेनी सीजन में छाता लगा करके अपने प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं और हवा विपरीत दिशा में तेज चल रही है, तो आपका क्या होता है, अम्ब्रेला उलट जाता है, आपका अम्ब्रेला उलट जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो आपकी ज्योमेट्री है उसके विपरीत यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और स्क्रीन के, और यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। अगर D होगा तो L हो जाएगा, L होगा
तो डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका जो आपको ये आपको जो बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या मतलब 5 वैलेंसी हो गई। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आप देखो ये आपका ट्राइगोनल है और बाई पिरामिडल, ऊपर की तरफ एक बांड जाएगा, एक बांड नीचे की तरफ जाएगा और 3 बांड यहाँ। ये आपको ए मान लो 1 है, एक्स वाई और ये जेड है और ये एम और ये एन है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ देखो ये आपको ट्राइगोनल 1 2 3 और बाई पिरामिडल ऊपर ऊपर, इन दोनों के बीच में कितना आपको जो है बॉन्ड एंगल होगा, इन दोनों के बीच में 180 होगा। और तीनों जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहा है वो आपको कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल फॉर्म तो 120 होगा और यहाँ पर आपको 180 होगा, एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो हियर while describing reaction to reaction, these things are must, especially the student who are aspiring for the NEET examination to crack the NEET. These things are must be remembered. Backward आपको जो है यहाँ पर अटैक होगा जब बैक, और दूसरा जो है साइमल्टेनियस ब्रोकनिंग एंड फॉर्मेशन, और ये जो ट्रांजिशन स्टेज है ये आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी पेंटावैलेंट हो जाएगा, बिकॉज 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 OH और Br। तो अब यहाँ पर ट्राइगोनल पेंटावैलेंट जो है, और फिर उसके बाद इनवर्जन। तो इनवर्जन यहाँ पर इनवर्जन आपको लेसन 1 में रेसिमाइजेशन, यहाँ पर क्या होगा, इनवर्जन होगा। अल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट कंटेन्स से पोलराइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्किल हैलाइड ये जो है क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पोलर है, पोलराइज। SN2 mechanism begins when the hydroxide ion approaches the substrate carbon from the opposite side, back side से of the bromine. This because both hydroxyl ion and the bromine atom are electron rich. This is because both hydroxyl ion, hydroxide ion and ब्रोमाइड आयन। अब ये क्या कह रहे हैं, आपका अल्किल हैलाइड है, इसमें हैलोजन है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसमें भी जो है आपको नेगेटिव है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से जाएगा तो देयर विल बी रिपल्सन। एक आप तस्वुर कीजिए अपने दिमाग में कि आप सामने हैं और आपके सामने असलहा जो है आप हाथ में लिए हैं, तो कोई भी जो आपका दुश्मन है वो अटैक करेगा तो सामने से नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर अटैक करेगा तो आप भी उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो है छुप करके पीछे से वार करे, जो आप नहीं देखेंगे, तो उसको पीछे से वार करना आसान होगा, तो वो बैकवर्ड। इसीलिए यहाँ पर जो है OH ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ब्रोमाइड भी जो है इसका नेचर जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर आमने सामने से आएंगे तो टक्कर हो गया, देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी, रिपल्सन होगा। इसीलिए ये बैकवर्ड से जो है पीछे से करता है, फ्रंट से नहीं करता है, क्योंकि फ्रंट में देयर इज ए चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसलिए बैकवर्ड करता है। और फिर ये ट्रांजिशनल स्टेट जिसमें 5, ये ऐसा जो है आपको इंटरमीडिएट है जिसकी वैलेंसी 5 होती है और कहीं कार्बन की वैलेंसी 5 देखने को नहीं मिलती। हालांकि ये ट्रांजिटरी है, 3 जो है कंप्लीट बॉन्ड होते हैं और 2 अनकम्प्लीट जो है पार्शियल बॉन्ड होते हैं, पेंटावैलेंट होता है ये जो है। और पेंटावैनल का आपको ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और आपके नीट एग्जामिनेशन में या इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं आपको पूछे जाते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। बैकवर्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी जो है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिपल्सन की वजह से आपको क्या कहते हैं,
एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए फ्रंट से नहीं करेगा, बैक से करेगा। हम जिस तरह से सोसाइटी में व्यवहार करते हैं उसी तरीके से ये रिएक्टेंट और अटैक्टिंग मालिक्यूल भी आपस में करते हैं। यहाँ पर ये बैक से, हमने आपको उदाहरण भी बताया कि फ्रंट में आपके पास जो है असलहा है तो सामने से कोई करेगा तो उस पर भी आप वार कर सकते हैं, तो इसलिए वो सामने से वार करने से बचता है, पीठ पीछे से वार करता है। तो चूंकि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, इसलिए फ्रंट साइड इधर से नहीं आएगा, बैक से आएगा। पेंटावैलेंट आपको बनेगा sp3d2 sp3d2, यहाँ पर आपको यह आपको आएगा और इस तरीके से आपको मिलेगा जो है। तो यहाँ तो पीछे से करेगा, दूसरा जो है क्या कहते हैं अपोजिट साइड से, पोलराइज अपोजिट साइड से करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा इन ट्रांजिशन बोथ OH and R पार्शली बॉन्डेड टू द सबस्ट्रेट कार्बन इन रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहला बता दिया। इन शेप विद द लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप द कार्बन एटम्स अगेन एज्यूम से पिरामिडल शेप। अब उसके बाद जो है इसके जब ये लीव कर देगा, छोड़ देगा, तो ये जो है आपको पिरामिडल स्टेप आपको आ जाएगा जो है। ये आपको यस। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर फिर दिखाई गई है कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन एट ए चायरल सेंटर। ये चायरल सेंटर क्या है? चायरल सेंटर वो ऐसा कार्बन जिससे संलग्न चारों परमाणु अलग अलग होते हैं। All the atoms or groups of atom attached to a particular carbon when they are different, all the groups attached to the carbon are different, then this carbon is known as chiral carbon। asymmetry के लिए आवश्यक शर्त होती है जो है। तो inversion of stereochemical configuration at a chiral center during a chemical reaction, inversion होता है, जैसे हमने कहा छाता उलट जाता है, आप जा रहे हैं, तेज़ हवा चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में छाता उलट गया। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में है और ये इस साइड में आपको आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं मालिक्यूल? वन इनैंसोमेरिक फॉर्म टू द अनदर। वाल्टन इन्वर्जन कन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मालिक्यूल फ्रॉम वन इनैंसोफॉर्म टू अनदर। अगर ये डी है तो एल में आ जाएगा, एल है तो डी में आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा आपका। ये चीज़ें आपको है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर फिर देखिए वही इजी अटैक और ये डिफ़िकल्ट अटैक स्टीयरिक। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं? तो पहला फैक्टर है स्टीयरिक। स्टीयरिक्स होता है साइज़। अब जब हायर साइज़ होगा तो उसमें ये संभव नहीं है, छोटे साइज़ में संभव हो। SN2 रिएक्शन रिक्वायर्स ए रिवार्ड अटैक on the carbon bonded to the leaving group. The larger the bulkier group, greater the steric hindrance and slower the rate of reaction. In general, the order of reactivity of alkyl halide toward the SN2 reaction, methyl प्राइमरी मेथिल सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी करता है और टर्शियरी जो है SN1 में चला जाता है, इसमें नहीं चलता। टर्शियरी अल्किल हैलाइड आर सो क्राउडेड दैट दे डू नॉट जनरली रिएक्ट by SN2, especially they will get SN1, they will prefer। तो पहला जो है स्टेरिक, हायर द स्टेरिक लीस्ट इज द चांस। जितना ही आप आर्म एम्यूनेशन से अपने को इक्विप्ड होंगे, दुश्मन जो है के चांस करने की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बहुत कम होता है तो यही होता है। SN2 रिएक्शन रिक्वायर्स ए रिवार्ड अटैक ऑन द कार्बन एटम लिविंग ग्रुप। अब लार्जर एंड बल्कियर द ग्रुप, ग्रेटर इज द स्टेरिक हेचर एंड द स्लोअर इज द रेट। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है जिंदगी भर। क्या कहते हैं ये लाइन आपको? लार्जर एंड बल्कियर द ग्रुप्स, ये लार्जर और बल्कियर ये हो चाहे ये हो ग्रुप्स, द ग्रेटर स्टेरिक इंफ्लुएंस ग्रेटर होगा और स्लोएस्ट द रेट। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड दिया है और यहाँ पर क्या दिया गया है? टर्शियरी दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा लेकिन रिपल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आसानी से अटैक कर जाएगा। इजी अटैक, यहाँ डिफ़िकल्टी साइड। तो
जितना ही साइज ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, उतना ही SN2 के चांसेस कम होंगे, SN1 के चांसेस, ये SN2 के चांसेस कम होते चले जाएंगे। जो है जितना ही बल्कियर होगा, SN2 नहीं होगा बल्कि SN1 होगा। ये आपको है। अब यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी और सॉल्वेंट इफेक्ट, दो चीज़ें हमने आपको बताई थी कि एक तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट प्रोटिक और एप्रोटिक। ये क्या होता है? बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ SN2 रिएक्शन, स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट फास्टर। तो SN2 के लिए स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। दूसरा सॉल्वेंट, फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन सोल्यूशन। जैसे आप पानी को में आप HCl डालते हैं तो आपको क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए आपको वाटर प्रोटिक कहलाता है। फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन सोल्यूशन। प्रोटिक की यही आपकी डिफिनेशन है, सॉल्वेंट विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन सोल्यूशन। एन इंक्रीज इन सॉल्वेंट polarity results in decrease in the rate of SN2 reaction. This decrease because protic solvent solvate the nucleophile। चारों तरफ, जैसे ये है, आप कपड़ा आपका जैसे भीग जाए तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से घिरा रहता है सॉल्वेशन से न्यूक्लियोफाइल, thus lowering its ground state energy because the energy of activated complex is fixed value, energy of activation greater and therefore rate of reaction decreases। यहाँ पर देखो, सोडियम is solvated by ion dipole interaction with water। यहाँ पर वाटर H2O, O नेगेटिव और H, और दूसरा आपका क्या है? सोडियम। तो यहाँ पर सॉल्वेटेड है, और यहाँ पर कंप्रोमाइज इज सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। यहाँ सोडियम सॉल्वेटेड है और यहाँ पर सॉल्वेटेड है। अब आगे हम चलते हैं। अब SN1 पे आप आ जाइए। तो SN1 में पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर और इसकी ऑर्डर 1 है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ alkyl halide, the reaction is of the first alkyl halide, और rate is directly proportional to the substrate। activated complex contains only one species alkyl carbonium and therefore unimolecular reaction। और ये आपको है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको alkyl halide है, ये पहला चरण स्लो है जिसमें आपको कार्बोनियम आयन बन रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। आप न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बैकवर्ड एंड फ्रॉम फ्रंट। पिछले आपने जो SN2 पढ़ा था बैकवर्ड था, यहाँ पर आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन, तो ये फास्ट है, यहाँ ये सेकंड स्लो है। तो स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इसमें सिर्फ एक ही आपका जो है अल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज द S1 रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आगे और पीछे दोनों से अटैक हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी क्या है? रेसमिक मिक्सचर, और यहाँ पर स्टेबिलिटी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल, यानी सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड रिएक्शन टर्शियरी में होता है, उससे कम सेकेंडरी में, और फॉर SN1 रिएक्शन। फी अमानिल्लाह, थैंक यू फॉर patience hearing. Kindly practice, then you will have the excellence. Thank you.